Thank you, good evening, and welcome you all. मेरा जो फील्ड है एट प्रेजेंट एक एडवोकेट हूँ, जहाँ कोर्ट में आई एम ऑलवेज अगेंस्ट द बैंकर्स. आज बैंकर्स के बीच में बैठा हूँ बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग इनटू साइबर क्राइम और मेरा पहला टारगेट होता है बैंकर्स. एंड व्हाट प्रॉब्लम्स आर बीइंग अराइज्ड ओवर देयर कि एक अननोन बंदा जो आके पूरा क्राइम करके चला जाता है और स्केपगोट जो बनते हैं हमारे वकालत के अंदर वो होती है बैंक्स. बिकॉज जो कस्टडियन ऑफ द पब्लिक मनी जो होती है वो बैंक्स के पास होता है और बैंक के आंखों के नीचे से वो पैसा निकल के चला जाता है. सो व्हाट वी डू, वी टेक द लीगल फ्रेमवर्क और बैंक्स को कटघरे में खड़े कर देते हैं. यू आर आंसरेबल फॉर दैट. अब बहुत सी इश्यूज आते हैं जब कोर्ट में खड़े होते हैं तो हम क्वेश्चंस पूछते हैं. आपका सिक्योरिटी क्या था, आपका वर्जन्स क्या यूज़ किए थे, आपने सॉफ्टवेयर क्या यूज़ किया, आपके थर्ड पार्टी सोर्सेज क्या है, उनको भी बुलाओ. एंड एवरीवन कम्स इनटू द क्लचेस ऑफ लॉ. तो अभी इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने के लिए एंड थैंक यू पैनलिस्ट ओवर हियर. अब स्पेसिफिकली बिकॉज टाइम बहुत रिस्ट्रेंट है, आई वुड लाइक टू आस्क डॉक्टर संजय. या सॉरी या सबसे ज़्यादा कि आपके बैंक के अंदर सबसे ज़्यादा फ्रॉड जो होते हैं वो किस टाइप के फ्रॉड्स आपने फेस किए एट प्रेजेंट? Most of the frauds are using passwords, unauthorized use of password. Again, OTP is going to be shared because, as I said, near about 96% banks are of tier 1 and tier 2, and they are working in the rural area. So the customer class is far away from the digital environment, or they are away from the technology. So some days back, if somebody has shared image, and that if that image is getting downloaded, then the information is going to hack by that sender, and the fraudulent activity is going to be carried out. This kind of thing. Again, in rural area, as they are unknown about the technology, so they are using mobile phone or technology, but with the help of somebody else. In that case also, there may be the possibility of fraud, and sometimes that PIN can be shared. Again, clicking, because everybody is having mobile and links are going to be shared. Some unauthorized links are going to be clicked, and then again because of this fraudulent activity, the important information, maybe the financial related information, is going to be still, and that is going to be used for the fraudulent activity. मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो अकाउंट होल्डर होता है वो कहीं ना कहीं अपने क्रीडेंशियल्स यूज करता है या किसी को दे देता है अननोइंगली. Yeah, that kind of thing. Again, password, whatever the password they are using, they are a very weak password. Most of the times they are using maybe their pet name or their children name, or maybe using digit like birth date kind of thing. So password must be strong password. That can be combination of small letter, capital letter, again some numbers. If they are using that kind of password, then there is a possibility of security of their financial asset. And again, there must be a frequency of change of password at least within 1 or 2 months. Password must be changed after 1 or 2 months. That will secure his whatever the financial asset is. I agree. आनंद जी, आप भी बैंकर ही हो. अब जो इन्होंने प्रॉब्लम बताया वो आपके साथ भी हो ही रहा होगा, करेक्ट? और सारे बैंकर्स के साथ में ये प्रॉब्लम हो ही रहा होगा जहाँ पे अकाउंट होल्डर्स क्रीडेंशियल शेयर कर देते हैं क्योंकि आप 2 टायर 3 टायर्स में हो, इतना डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती है. तो क्या ये सिर्फ यूज़र के ऊपर ही होता है कि आप भी बैंक्स एज ए इनिशिएटिव भी लेते हो ट्रेनिंग के लिए कि आप कंज्यूमर्स को बुला के उनको भी एक अवेयरनेस ड्राइव होता है या उनको भी ट्रेन किया जाता है मोबाइल बैंकिंग कैसे की जाती है? As far as cyber awareness is there, in our bank we are doing this cyber jagrukta booklet and something like that, and which is published in the website, and we have created standee. We have created standees and do's and don'ts. We are given repeatedly giving the guidelines
security guidelines, what action to be done, what not to be done. If any fraud is there, then we have created that online grievance mechanism, FRM, fraud risk management, FRM tool, because RBI is also mandatory, that regulatory mandatory, कि FRM should be live and it should be on the digital platform like eFRM. So that type of things are then taken. And then as far as security concern, we have to do this. Being a banker, we have to adopt the new technologies like anti-phishing drive, then SOC, something like that. But even though it is costly affair, but as far as digital attack concerned, because in the recent survey, around 250 crores frauds has been reported, and which has been public sector bank has been uploaded in the regulator's website. So that was the survey. So considering that thing, everyone should be alerted mode. So that action to be taken care, even for it is ransomware or anti-phishing, like Sanjay sir told, that for ransomware attack and phishing, that has to be taken care. Sir, I would come to. Sir, I would like to add one in this thing. Yeah. Sir, in the rural area, different campaigns should be arranged. Again, every bank should have a help desk, every bank, so that they can explain what kind of care should be taken by their esteemed customers. And different campaign, maybe through the AV or like that. Again, government is also prompting that use 1930 number for immediate reporting the fraudulent activity. Sir, Abhi, I agree with you, but I'll tell you now, sir, even doctor sir, आप भी बैंकर हो, 1930 तो इतना कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया कि हमारी जिम्मेदारी हटा के दे दो, 1930 के ऊपर डाल दो. आप पुलिस के पास जाओ, 1930 डायल करो. आप भी बोल रहे हो 1930 डायल करो. 1930 में 10 बार डायल करूंगा तब एक बार नंबर लगता है. तब तक तो क्रिमिनल वो पैसा लेके कौन से देश में चला जाता है पता भी नहीं चलता है. ये क्या सोल्यूशन होता है क्या सर? नहीं, इसमें every bank should have one helpline number. If they are using credit card or debit card, if something happen, they should call that number and immediately a card can be blocked. But and further transaction can be hold. So sir, Doctor sir, I would like to ask you, is there any facility, इस टाइप की कोई facility available है कि मैं एज अ अकाउंट होल्डर, मेरे पास क्या रेमेडी है कि अगर मेरा पैसा चोरी हो जाता है या मेरे पास कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है, तो मैं मेरे बैंक को रात को, मोस्टली ये फ्रॉड्स होते हैं फ्राइडे नाइट को होते हैं, सैटरडे बैंक बंद होती है, संडे बंद होती है. और जो आरबीआई का गाइडलाइंस है 2017-19 का कि 3 वर्किंग डेज के अंदर अगर आप रिपोर्ट करो दैट द बैंकर हैज टू रीएम्बर्स दैट पर्टिकुलर मनी, पर वो 3 दिन तो ऐसे निकल जाता है, मैं मेरे बैंक को कांटेक्ट कैसे करूं? तो सर आपके पास कुछ ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल है? नहीं, मैं बैंकर्स को पहले पूछ रहा हूँ, बाद में सिक्योरिटीज के पास आऊँगा मैं. नहीं, ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है एकदम फ्रैंकली, क्योंकि बैंक के पास डिजिटल सिस्टम किसी के और के ऊपर डिपेंडेंट है. ये अवेयरनेस की जो बात कर रहे हैं कि हम चला रहे हैं, वो हमारे सुपरस्टार एवरीडे टीवी पर आके बोलते हैं कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, फिर भी ये प्रॉब्लम एवरीडे होता है और वो यहाँ डिस्कस करने का सब्जेक्ट ही नहीं है. यहाँ सभी बैंकर बैठे, कस्टमर तो कोई है ही नहीं. और द बैंकर को जो प्रॉब्लम है सर, थोड़ा मैं ऑफ रिकॉर्ड जाऊंगा कि सीबीएस से हम लोग डिपेंडेंट है. अभी इसके आगे की पैनल वाले ने बोले कि हम पार्टनर है, तो भैया हमारे प्रॉब्लम में भी पार्टनर बनो. आप सिर्फ पैसे लेके जाने के लिए ही पार्टनर हो क्या? बैंक एज अ बैंकर आई एम आंसरेबल टू रिजर्व बैंक, आंसरेबल टू रजिस्ट्रार, एजीएम में शेयर होल्डर को आंसर करूँ, कस्टमरों को संभालूँ, यूनियन को संभालूँ. और ये डिजिटल का जो प्रॉब्लम होता है वो मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टू सीबीएस सिस्टम. और हमने सीबीएस में अभी काफ़ी प्रॉब्लम ये किया है, फेस किया है और हमने चेंज किया है. अब हम सीबीएस के साथ एग्रीमेंट के लिए पेनल्टी क्लोज की बात करते हैं. मैंने अमरेला में भी सीनियर लोगों से बात की है, वो दे रिफ्यूज़ टू डू. अरे भैया सिग्नल तोड़ने का 500 रुपया फिक्स किया है तो आप सिग्नल मत तोड़ो ना, आपको 500 रुपया दंड नहीं लगेगा. ये सभी बैंकों को ये प्रॉब्लम है, सीबीएस वाले हाथ उठा लेते हैं. वी आर आंसरेबल टू यू. अभी हमारे रिपोर्ट्स नहीं हो रहे, कुछ काफ़ी प्रॉब्लम्स है. मैं नाम लेके डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, डेकोरम डजंट परमिट. लेकिन ये प्रॉब्लम है, ये जो साइबर क्राइम का अपनी जगह पर प्रॉब्लम है,
लेकिन ये मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लोग हमको सपोर्ट, एज अ बैंकर आई डोंट नो डिजिटल, और जो हम लोग सब पुराने बैंकर हैं तो उनके पास तो हमको नॉलेज ही नहीं है, और ये सिस्टम में ये लोग रोज कुछ ना नया लाते और वो हाथ एवरी टाइम खाली बिल ही भेजने का काम करते हैं। लास्ट टाइम हमारा डेटा एक सीबीएस सेंटर ने ओवरनाइट बंद कर दिया था, फिर हमने स्विच ओवर किया, एंड वी आर फेसिंग सेम प्रॉब्लम। ये लोग प्रॉमिस कुछ करते हैं, हम तो इतने मासूम है कि इनकी बात पे भरोसा कर लेते, यकीन कर लेते बैंकर, और बाद में फिर तो यही चलता है। ये सभी का प्रॉब्लम होएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बस। आई एग्री विथ यू, बट देखिए ये क्या होता है, ये इंटरनल प्रॉब्लम्स हो गए। नहीं, इंटरनल प्रॉब्लम ही नहीं है सर। आई एग्री विथ यू। सीबीएस हमारा पार्टनर है, हमारी पूरी बैंक की सिस्टम उनके ऊपर डिपेंडेंट है। आरटीजीएस लो, जो भी कुछ ले लो, मोबाइल बैंकिंग ले लो, एटीएम ले लो, एवरीथिंग डिपेंड ऑन डिजिटल। और उसमें जब प्रॉब्लम आता है तो वी आर आंसरेबल। आप मुझे पर केस करोगे, बराबर ना? आपने बोला कि हम बैंकर को पकड़ेंगे। यस। ये प्रॉब्लम हुआ कैसे, उसके लिए हमारी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो इसलिए अभी मैं सर निहार मतलब साहब आपको मैं ये बोलता हूँ कि उनको भी रिस्पॉन्सिबल बनाओ, और कुछ नहीं, बोल मैं रहा हूँ। उस पे भी आऊँगा, बट यहाँ पे मैं लिटिगेशन के डराने नहीं आया हूँ। मैं एज अ बैंकर आया हूँ यहाँ पे, बैंकर के अगेंस्ट वाला बन के नहीं आया हूँ, क्योंकि वो जो ऑफ ट्रैक कोर्ट में जो होता है वो एक अलग चीज़ होती है। वी ड्रैग एवरीवन। हम निहार सर भी अगर इनके साथ में कॉन्टैक्ट, तो हम निहार सर को भी कोर्ट में घसीट लेते हैं, बिकॉज ही इज गिविंग द थर्ड पार्टी सोल्यूशंस। तो निहार सर, आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क यू कि जैसे 3 टायर 2 टायर बैंक्स होते हैं, आर दे कंप्लाइंग विद द साइबर सिक्योरिटीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द आरबीआई, बिकॉज आप सिक्योरिटी सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हो। So, hello everyone. I'm MDC of 63 SATS Cybertech. We are the leading cybersecurity for enterprises, B2G and B2C. So, my point here is, if you see the India landscape for urban cooperative banks, it has moderate security. Yeah. Where is one is the lack of funds, one is the focus is on the running the existing business. Security is looked upon on the cases that we cater to our customers, is now in the last 2 years become a priority. Budgets are getting opened up, but basically the IT heads or the CISOs of each bank that we see, the more they want to protect, the more they are drawn by compliance. They become more compliance officers, ensuring the bank is compliant and into day-to-day operations, then focus completely on security. So what happens is we tell people that let security be handled by professionals who breathe day in and out security. For compliance, when you say a bank is compliant with a guideline, compliance is always a baseline. So you have there at a baseline, but you need to scale up to be more secured. Each change in your firewall or a software, the entire security posture changes completely. You need continuous monitoring, and that is what we do. आई एग्री विथ यू, बट मैं जस्ट इस पर थोड़ा मेरी तरफ से ऐड ऑन करना चाहूँगा कि सपोज फॉर एग्जांपल सर की बैंक ने आपके साथ में आपके सोल्यूशंस लिए, यू आर टेलिंग दैट वी आर गिविंग द बेस्ट सिक्योरिटीज़, हम आपका पूरे कंप्लायंसेस का ये देख रहे हैं, तो इतना सब कुछ होने का, एंड यू आर वन ऑफ द बेस्ट कंपनी ऑल्सो, बिकॉज आई सॉ योर मॉर्निंग सेशन। उसके बावजूद भी अगर आप साइबर क्राइम के जो रेशियो देखो, वो कम नहीं हो रहे, वो बढ़ रहे। आप खुद बैंकर्स को तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज जस्ट हाई कोर्ट के अंदर, जस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर मेरा एक पिल पेंडिंग है, जिसके अंदर 2021-22 का जो आरबीआई का डिक्लेरेशन है, वो 1,27,000 करोड़ रुपया साइबर क्रिमिनल्स बैंक में से उड़ा के लेके गए। अब आप सोचो 1,27,000 करोड़ एक साल में, तो सिक्योरिटी लैप्स कहाँ हो रही है? कहीं ना कहीं इंटरनल कुछ इश्यूज है, जिसकी वजह से क्रिमिनल बेधड़क आके हिडन मास्क पहन के आते हैं, लोगों का हार्ड एंड मनी पैसा लेके चले जाते हैं। यहाँ तक कि बैंक्स भी सेफ नहीं है। आई विल नॉट नेम वन ऑफ द वेरी लीडिंग नेशनलाइज बैंक, जिनके 1100 करोड़ रातों रात चले गए, 1100 करोड़ रुपीज चले गए, बिकॉज आई वॉज हैंडलिंग दैट पर्टिकुलर केस। व्हेन आई आस्क्ड द बैंकर, द चेयरमैन एंड ऑल, सर 1100 करोड़ ऐसे कैसे चले गए? सर वी हैव नो सोल्यूशंस, हमें नहीं पता कैसे चले गए। दिस कैन नॉट बी द आंसर। तो कहीं ना कहीं कुछ लैप्स हो रहे हैं, जो क्रिमिनल्स को पता है, हमें नहीं पता है। So what happens here is criminals, their focus is to breach. 24/7 they think about how do they breach.
But the banking professionals, security professionals, IT professionals, they are into day-to-day operations. They are into day-to-day compliance, checklist compliances. You need complete Hawkeye technology to completely keep monitoring of any intruder which is trying to get into this. What we have also seen is user-based attack. It is always social engineering, starts with an internal employee. It could be a frustrated internal employee, or it could be a person who is very lax in security. We have seen dominance of most of the systems which we have implemented. After a period, people will not update it because this is IT. All softwares have bugs which are later patched with updates. So the updation cycle is not complete. People say that we cannot get the core banking down during customer business hours. We take the downtime. Business has told downtime is after 15 days. You are at a risk of 15 days. Because this monitoring happens on a scanning, and we have seen attack breaches. We use one of the best monitoring solutions. We also have honeypots. We open up a system just to see what is the latest hacker come in, and we record these sessions, what they do and what they try and capture from a bank. So this is a continuous process. As long as there is digitization, there is software, you have to be one step ahead. सर इसमें मैं थोड़ा आपको बोलना चाहूँगा कि 2 टायर हमारी जैसी छोटी बैंकें जो है, हम लोग 6 डिजिट सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकते आईटी के लिए. तो एक्चुअली ये जो डिजिटल कंपनी है उनको हमारे को ज़्यादा प्रोविज़न और प्रोवाइड ये देना चाहिए सिक्योरिटी, क्योंकि हमारे पास टीम नहीं है. जो बड़ी बैंक है उनके पास आईटी की 15-15, 20-20 आदमी की टीम है, हमारे पास 1 या 2 आदमी है. तो ये थोड़ा सिक्योरिटी लैप्स विलिंगली और अनविलिंगली होने वाला है. तो आप जो प्रोवाइडर है, आपको ऐसा कुछ होना चाहिए जो हम लोगों को प्रोटेक्ट कर सके. Correct, sir. For this, we provide managed security services. It's a very known model for the last couple of years. MSSP model है, where the security onus is taken by security companies. We have our people monitoring completely, so you can निश्चिंत होकर आप रह सकते हैं because you have thorough professional, but 24/7 at a marginal cost. This is because we have a very large SOC, a security operations center, in which one of the team members is monitoring that. So we distribute the infrastructure for monitoring. So the cost is not laid on you also, and you are able to outsource your security at a very nominal cost. In case अगर कुछ हुआ तो that means your responsibility. Banker is not responsible. सर उसको ऑफलाइन में अपन बात करेंगे. Who is responsible, who is not responsible. I am a lawyer, I will decide who is responsible. किसको अंदर डालना, किसको बाहर निकालना, मैं डिसाइड करूँगा. Sir, actually in rural area, apart from the salary component, one more thing is that technical sound people are not ready to stay in the rural area. So that is one more problem. I agree. वो internal issues होते हैं. But I'll come back to you, रुसिक भाई. Just because you are from the insurance segment. अब ये सारे problems आप सुन ही रहे हो. हम लोग जैसे हम मेडिक्लेम में भी जाते हैं तो हम सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर डिपेंड होकर फिर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में जाते हैं कि मेरा 10 लाख का इंश्योरेंस है तो मैं जा सकता हूँ रिलायंस कोकिलाबेन में. द सेम वे हाउ डज द साइबर इंश्योरेंस, ये फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट एंड कोऑपरेटिव बैंक्स को कुछ हेल्प इस टाइप का कोई स्कीम है? Thank you, sir. So, first of all, since morning we have been talking about the challenges, the issues, the cybersecurity issues, the fraud issues and all. And probably this is the first time we are talking about a potential solution which is not very heavy on the pockets of the banks as well. So, yeah, cyber insurance is something that is that has been there for a while now, but there has been a significant uptick in the cyber insurance over last couple of years, especially because the ways of doing business has changed. What just sir said is right, that we have been the traditional bankers, but the way of doing banking has changed. We are relying heavily on the technology. So whilst you beef up your security, you do your investments on the security bit, but insurance is also a risk transfer mechanism that you should evaluate. The way cyber insurance works is that at the time of, if you have taken a cyber insurance, and there has been a breach, the insurance will pick up the forensic cost that you would end up paying, which is a direct hit to your balance sheet. If there is any ransomware attack and there is a ransom demand that comes in, the insurance policy will also pick up the ransom amount that you pay to the hacker. If there is a business interruption, let's say there is, you cannot conduct your business for a couple of days,
whatever loss you have incurred during those period will also be picked up. And the fourth most important thing is the regulatory aspect, because the industry is heavily regulated and there are multiple regulators, so there could be potential regulatory fines and penalties. So the insurance also picks up regulatory fines and penalties levied by the regulator. So I think insurance obviously is not an alternative to the security investment, but is a strong risk transfer tool that you need to look up. इसके ऊपर मैं वापस एक क्वेश्चन आपको पुटअप करना चाहूँगा, बिकॉज आप सब बैंकर्स को ये बहुत ध्यान से सुनिएगा. अगर सपोज मैं बैंक के ऊपर एक केस फाइल कर रहा हूँ कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, और एक वहाँ पे एक ऑर्डर ले लिया और आईटी ट्रिब्यूनल में जा रहा हूँ, वह बिकॉज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रिब्यूनल में जाऊँगा तो बैंकर्स को ही पार्टी बनाना पड़ता है. बैंकर के अगेंस्ट में एक ऑर्डर पास हो गया कि ओके 1 करोड़ का शिफनिंग ऑफ हुआ है, पे 1 करोड़ अलॉन्ग विद द लीगल फीस एंड द पेनल्टीज, द कंपेंसेशन. तो सपोज द 2 करोड़ डिमांड हैज बीन रेज्ड बाय द कोर्ट. नाउ एज बैंकर ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, तो आर यू गोइंग टू रीएम्बर्स द 2 करोड़? So insurance also picks up the legal cost to defend myself. So जैसे litigation आया, okay, I will appoint a lawyer to fight it out in the court of law. So the cost of legal lawyers that I appoint to defend myself in the court will also be covered under the insurance policy. And hypothetically, let's say there is a negligence being found. It's not a gross negligence. अगर आपको कुछ 4 चीजें करनी थी वो आपने की है, फिर भी कुछ हुआ, and there is a award that comes onto it, insurance policy might pick that up as well, depending on what kind of a coverages you have negotiated. तो आप बताइए कितने बैंकर्स ने, आप खाली आपसे नहीं बता रहा हूँ, इंश्योरेंस पॉलिसी ली होगी यहाँ पे? So honestly, there are very large banks who have been buying insurance policies to the tune of 200 crores, 300 crores and all. But in our experience, I think the uptake of cyber insurance in cooperative banks is limited, and there are multiple factors to it. Obviously, one is the cost-conscious, approach that most of the cooperative banks have. Second is also because they don't have the right security measures, the insurers are not willing to provide insurance solutions, or the cost or the premium, as we say, is on the higher side. So it's a catch-22 situation. You need to find a right balance of what kind of an insurance you need to take and at the same time you need to have base level security that would help you achieve or get a insurance in place. I would like to give आप सबको एक एग्जांपल देना. अपने ही एक बहुत फेमस कोऑपरेटिव बैंक है जिसके अगेंस्ट में मैंने ही केस किया था. 2016 में मेरे क्लाइंट का फ्राइडे नाइट को सिम स्वैपिंग इशू हो गया. उसके अकाउंट में 1 करोड़ 20 लाख रुपया है और उसके अकाउंट से 1 करोड़ 86 लाख चले गए. 1 करोड़ 20 लाख है बट 186 चले गए. केस हुआ, सब कुछ हुआ, मुजरिम को पकड़ा भी. मुजरिम को पकड़ा तो उसको कबूल किया उसके कि सर मैंने 1.86 चोरी की है. क्लाइंट बोलता है मेरे पास 120 है, 66 मेरा नहीं है. बैंक बोलता है ये 66 मेरा भी नहीं है. ये 2016 से लेके अब तक सुप्रीम कोर्ट तक मैटर चला गया. कोर्ट ये पूछ रही है 66 लाख किसका है, अब तक उसका जवाब नहीं आया. बैंकर बोलती है मैंने 66 एडमिट कर दिया तो मेरा सिक्योरिटी लैप्स है. अकाउंट होल्डर बोलता है मेरे पास 120 ही था तो मैं 66 क्लेम क्यों करूं. अब चोर बोलता है मैंने 186 लेके गया हूं. अब आप बताइए, ये सुप्रीम कोर्ट तक मैटर पहुंच चुका है. आई डोंट वांट टू नेम दैट बैंक ओवर, इट्स अ कोऑपरेटिव बैंक ओनली. अब ऐसी चीजें भी कहीं ना कहीं इश्यूज आ सकती हैं और इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल. अभी रिसेंटली आई एम गेटिंग अ वारंट इशूड अगेंस्ट द चेयरमैन ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक बिकॉज कहीं ना कहीं गवर्निंग बॉडी के साथ में कहीं ना कहीं लैप्स हुआ है. 66 lakhs वो किसका है? नाउ दिस इज वेयर वी आर एक्चुअली ओवर हियर टू डिस्कस द लीगल प्रॉब्लम्स ऑल्सो. सिक्योरिटी है, सब कुछ है, उसके बावजूद अगर ये सब चीजें हो रही है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? तो इसके अंदर सर आई वुड लाइक संजय सर, कोई पर्टिकुलर पैटर्न जो आपके बैंक के अंदर अगर आपने नोटिस किया कि इस टाइप के, बिकॉज साइबर क्रिमिनल्स कोई मुंबई दिल्ली उसी को टारगेट नहीं करते. हमारे पास केसेस आते हैं 2 टायर 3 टायर सिटीज के अंदर ज्यादा करके टारगेट हुआ जाता है. पुलिस यहाँ से आसाम जाती है, गुवाहाटी जाती है और पता चलता है छोटे से गांव के अंदर वो बैंक है और उसके अंदर अकाउंट खोला गया है. अब वहां पे प्रॉब्लम होता है, केवाईसी भी दिखता है तो काला काला जेरोक्स मिलता है. तो ये सब चीजें नहीं आती है. फिर बाद में क्या होता है, यहाँ पे फिर कोर्ट से ऑर्डर लिया जाता है, उस बेचारे मैनेजर को उठा के लाया जाता है यहाँ पे. अब वो उसका फॉल्ट क्या है? तो ऐसा कोई पैटर्न आपके बैंक्स में दिखता है अकाउंट ओपनिंग करते वक्त?
हमारे बैंक में तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे हो सकता है. Fake, maybe somebody is going for Xerox, and by stealing that Xerox document, somebody is unauthorized person is opening that account, and fraudulent activities are going to be carried out. Same thing, but we are not able to identify that person because of that of a black Xerox like that. So that kind of thing can be happen. Such kind of things are not happened with my bank, but some other bank it can happen. So again, system should, we are having some system, and we need to check whether that maybe he or she is using Aadhaar card or PAN card, whether that is authorized, or we can check that Aadhaar card is correct or not. That system we are having. So Aadhaar card is checked, and then that account is going to be open. सर अभी आप आधार कार्ड के बारे में बताएं. मैं सब बैंकर्स से पूछना चाहूँगा, कितने लोग ये मानते हैं कि आधार कार्ड लेने से ही सिक्योरिटी केवाईसी अडॉप्ट किया जाता है? हाउ मैनी ऑफ यू कि आधार कार्ड इज कंपलसरी? सर मैं बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर डायरेक्शंस के हिसाब से बैंकर कैन नॉट इंसिस्ट ऑन आधार कार्ड. अगर मुझे अकाउंट ओपनिंग करना हो, मैं आधार कार्ड ना दूँ, और उसके बावजूद भी अगर मुझे अकाउंट ओपनिंग करना है और मैं खोल दूँ, तो सर मैं आपके पास आऊँ. तो अगर मैं आता हूँ विदाउट आधार कार्ड, मैं आपको जजमेंट बताऊंगा, यू कैन नॉट आस्क फॉर माय आधार कार्ड, फिर भी आप अकाउंट ओपनिंग करोगे, तो क्या सिक्योरिटी आपने क्या वेरिफिकेशन किया? We can take the mask Aadhaar card. नहीं, बट आधार कार्ड अलाउड ही नहीं है, अगर मतलब मैंडेटरी नहीं है, मैं नहीं दूंगा मेरा आधार कार्ड, तब क्या करेंगे आप? Then system has to be strengthened. तो नहीं, अभी क्या पोजीशन है? वो जब सिस्टम अडॉप्ट होगा वो सब बात की बात है. एट प्रेजेंट with other IDs can be open the accounts. तो मतलब आधार इज नॉट मैंडेटरी, करेक्ट? Yeah. तो आप मैं ड्राइविंग लाइसेंस लेके आ जाता, तो आप उसका कैसे वेरिफिकेशन करेंगे? अब सर मैं आपके पास आता हूँ, बिकॉज वो जाएगा थर्ड पार्टी के पास वेरिफिकेशन में. तो आप हाउ आर यू गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट? बिकॉज मैं अभी तक जितने सुबह से सुन रहा सब आधार 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 ही बोल रहे हैं. अब मैं आधार का अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर सबको दे दूँ तो आधार निकल जाएगा हाथ में से. अब मैं ड्राइविंग लाइसेंस लेके आ जाऊँ, बिकॉज ड्राइविंग लाइसेंस इज अ वैलिड डॉक्यूमेंट. तो उसको आप एज अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट, बैक एंड आप संभाल रहे हो बैंकर्स का, तो आप उसको कैसे वैलिडेट करेंगे अकाउंट ओपनिंग के लिए? We need to check if it is linked with DigiLocker. If the same license is authenticated in Parivahan, is the only way it can be authenticated. Because if you still go to the not so developed states, you can still make a driving license. सर स्टिल मेक एन, मैं अभी So, आपके पास so आया हूँ. unless the license is part of the DigiLocker portal, it cannot be authenticated. अब मैं सर प्रपोज कर रहा हूँ, यहाँ पे कितने लोगों के पास डिजी लॉकर होगा? हार्डली होगा, क्योंकि 2 टायर 3 टायर में बात अर्बन अपने जो बैंक से मोस्टली दे इन द 2 टायर 3 टायर्स में, तो डिजी लॉकर नहीं, वो नॉर्मल एक जेरोक्स लेके आ रहा है और वो बैंकर है, बिकॉज दे आर यूजिंग योर सॉफ्टवेयर, उसके अंदर डाल दिया, उसने स्कैन करके डाल दिया. तो डज योर सॉफ्टवेयर वेरीफाई दैट क्रीडेंशियल्स? बिकॉज अकाउंट ओपनिंग तो इमीडिएटली करना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन इतना है कि हमें अकाउंट खोलना है जल्दी, तो आपका सॉफ्टवेयर उसको कैसे वेरिफिकेशन में डालेगा? We are not into verification. We are completely into the banking perimeter security and security of any breach or a threat actor trying to get in. So, Aadhaar verification or a license verification is a complete process which has been set up by the banking business chain, not by any service provider. If the bank accepts, they have to take the onus of verifying the person. सर आपके ऊपर नो कमेंट. मतलब ये हो गया, हम एक दूसरे के ऊपर डालते रहेंगे और क्रिमिनल्स मरे आराम से वो लेके जाएंगे, बिकॉज हमारे पास वो प्रॉपर प्रोसीजर ही पता नहीं है कि क्या करना है. हमें यही नहीं पता कि क्या गाइडलाइंस है. वी आर फॉलोइंग आरबीआई गाइडलाइंस ओनली. नहीं, आरबीआई के ऊपर कोर्ट्स आर ऑल्सो देयर, द मिनिस्ट्रीज आर ऑल्सो देयर, दे आर ऑल्सो कमिंग आउट विद सम गाइडलाइंस एंड फ्रेमवर्क्स. उसको भी हमें फॉलो करना रहता है. अभी जैसे सिक्योरिटी का हो गया, तो अभी सर आई वुड लाइक टू, तो अगर समझो मैंने अकाउंट खोल भी दिया, अब मेजर प्रॉब्लम जो मुझे बैंकर्स से मिलता है कि एक अननोन अकाउंट, एक अननोन बंदा आके अकाउंट खोल के चला जाता है और फेक केवाईसीज और वो आपके इशू करके जाते हैं, और सडनली आपको 1930 से या एक ईमेल आ जाता है कि ये अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए, करेक्ट? और आप उसको कंप्लाई करके फ्रीज कर देते हो. 2 महीने बाद एक मुंबई कोर्ट से आपको अगर कोई ऑर्डर आ जाता है कि इस अकाउंट को डिफ्रीज कर दिया जाए. दिल्ली कोर्ट से भी एक ऑर्डर आता है कि इस अकाउंट को डिफ्रीज कर दिया जाए. अब एक अकाउंट, एक ऑर्डर 2, अब क्या करेंगे? We'll take legal opinion.
नहीं तो लीगल से ही आ रहा है, आपको कोर्ट से आ रहा है? नहीं, our bank panel, who are working as a legal panel, we are having our own legal panelist. We'll take opinion of that because legal information we don't have. We take opinion and after that we'll act. तो इसके लिए प्रॉब्लम से हो रहा है, तो सर आपके पास भी वही सॉल्यूशन है कि लीगल ओपिनियन? सर आपके पास? सर पहले तो हम लोग छोटी बैंक है, तो ये फिजिकल वेरिफिकेशन वीट मैन जो भी है कस्टमर उनको ब्रांच में आके ही करना पड़ता है। थोड़े हम लोग पुराने ज़माने के लोग हैं, इसके लिए अभी ऐसा है, इसके लिए हमारे वहाँ ये प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं आया है। नहीं सर, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो काला पीला जो आप बोल रहे हो नहीं, क्योंकि हम अभी हमारे पास जितने केसेस आ रहे हैं कोई नेशनलाइज बैंक के अगेंस्ट में नहीं आ रहे, सब कोऑपरेटिव बैंक्स के अगेंस्ट में ज़्यादा आ रहे हैं। बिकॉज क्रिमिनल्स को पता है ये सारे कि कहाँ लैकुनाज है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स है। गांव खेड़े में जाके अकाउंट ओपनिंग कितना इजी होता है, पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, सुबह अकाउंट खोल गया, शाम को अकाउंट बंद करके भी चले गए। बट लॉ वो नहीं देखता है, लॉ सब कुछ एक जैसा होता है, भले आप कहीं पे भी बैठे हो, द लॉ इज़ द सेम फॉर एवरीवन। तो उसी हिसाब से तो अगर कुछ इश्यू हो जाता है, ईमेल का अकाउंट फ्रीजिंग का आता है, मेरा क्वेश्चन था अकाउंट फ्रीज। हम लोग जो छोटे बैंकर है वो हम इंट्रोडक्शन में भी सिग्नेचर लेते हैं। नहीं सर, वो क्वेश्चन नहीं मेरा। अगर कोई पुलिस ने अगर आपका किसी अकाउंट होल्डर का अकाउंट फ्रीज करवा दिया, वो तो नहीं, आपका वो तो बाद में हो जाएगा, वो तो बाद लेकिन में है। हाँ। हम जब अकाउंट खोलते हैं तो कोई इंट्रोडक्शन के भाई मैं अकाउंट खोलने आया तो आप मुझे जानते हो करके आप नीचे साइन करते हो। नहीं वो नहीं है वो सर। एक जो है ना, जो बोगस अकाउंट खोलने की जो आइडियाज है ना, वो थोड़ी रूल आउट हो जाती है। 100% शायद नहीं होती होगी, लेकिन 99% तो हो जाती है। थैंक गॉड हमने ऐसे प्रॉब्लम अभी तक फेस नहीं किए। थैंक गॉड अभी तक नहीं आए, जितना आए नहीं आए उतना पब्लिक का पैसा सेफ होता है। तो नाउ एज टाइम इज वेरी कॉन्स्टेंट, आई एम सॉरी वी कैन नॉट कंटिन्यू फर्दर बिकॉज बहुत टाइम खींच गया। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द पैनलिस्ट, और अपना टाइम सुबह से बैठे हम लोग यहाँ पे अपनी इसी कंसल्टेंट के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you. Thank you.